interesting developments or important developments that shift focus and set up the debate on this edition of The Right Stand. A major crackdown by the Uttar Pradesh government led by Chief Minister Yogi Adityanath, banning items with halal certification in the state with immediate effect. Meat, certain medicines and some cosmetics are exempt, as are exports. This ban comes after the Lucknow police cracked down against a few organizations following an FIR that was filed by a member, and action was taken based on that FIR. And this was for allegedly exploiting people's religious sentiments to boost sales by providing forged halal certificates. At least 4 organizations were booked under criminal conspiracy, promoting enmity between different groups, extortion and cheating. But let's try and take a deeper look into the government's rationale. In a statement, the state government has alleged malicious attempts by a few to weaken the nation. The state government warned of strict legal action against any individual or firm engaged in the production, storage, distribution, buying and selling of halal certified medicines, medical devices and cosmetics within Uttar Pradesh. Now here is what they said and on why the ban was needed. The first claim is that there is unrestrained propaganda that's being disseminated. The second claim, discouraging use of goods without halal certificate. Third, harms the business interests of other communities. Fourth claim, pre-planned strategy to sow hatred, create divisions. Claim 5, unfair financial benefits to a certain class. The sixth claim is that halal certification as a parallel system creates confusion. Now, in order to differentiate halal items from non-halal ones, a certificate is being issued for halal products, informing the consumer that the product meets the standards. But what makes it a grey area? Well, let me first tell you, history says that it all started because of certain slaughterhouses and butchers in England, in the United Kingdom. And that's where the certification started, and it was supposed to be limited only till there. But over the last few decades, it's become a global operation that runs into billions of dollars, ladies and gentlemen. The government doesn't mandate, our government doesn't mandate halal certification. In Bharat, there is no unifying regulatory law or official regulator. The FSSAI, that's the body that will actually certify products whether they are safe for consumption or not. Private companies are issuing halal certificates in Bharat. In 1974, halal certification started in our country for meat. In 1993, the certification extended to other products. And there is no body that actually mandates this, governs this, or even specifies this. There is no specific labeling need for imports into our country. So the question is, if this is an organization and this is a racket that's being run, a money-making racket, and also that is actually showing harm in society and misleading sections of society, and there is brazen profiteering, then is this ban that is now in Uttar Pradesh, should it now be extended to other states and should other states follow? That's the question that we ask. Let's dive into the debate straight up. Manish Shukla of the BJP joins us on debate number 1. Hello, Moto. Manish Shukla of the BJP with us and Vivek Silas of the Samajwadi Party with us. We should have author and film producer Harry Sikka joining us. He, along with a few others, have taken up this issue long back and been fighting against halal certification for many years. In fact, I remember back in 2017, 2018, they had made a representation to the UP government to take this seriously too. But what prompted this now, Manish ji? Namaste and Jai Hind, Manish ji and Vivek. Thank you. जय हिंद। तो मनीष जी बताइए, व्हाट्स प्रॉम्प्टेड दिस सडनली? देखिए, लगातार राज्य में ये शिकायतें मिल रही थी कि हलाला सर्टिफिकेट के उत्पादन को प्रदेश में बेचा जा रहा है। जो एनजीओज और जो संस्थाएं इसको सर्टिफाइड कर रही हैं, उनको कोई सरकारी नियमों का समर्थन नहीं है। एक रचित दस्तावेज के आधार पर कूटरचित प्रमाण पत्र बनाकर ये कंपनियों को दिया जा रहा था, और जिससे अवैध धन वसूली हो रही थी। जो कंपनियां इनसे सर्टिफिकेट नहीं ले रही थी, उनको धमकी दी जा रही थी, एक वर्ग विशेष के लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। दरअसल ये इसमें 3-4 सवाल खड़े हुए। एक तो ये जो एक्सरसाइज थी, ये बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए साजिश की जा रही थी। अन्य
लोगों के रोजगार पर भी हमला था और साथ ही साथ हवाला उत्पादन में जो ये लोग प्रमाण पत्र दे रहे थे, क्या इनके पास कोई ऐसी तकनीकी है जो भोज्य पदार्थों को सर्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की एक एजेंसी है FSSAI, जो तकनीकी रूप से ये तय करती है कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें क्या चीजें मिलाई गई है, वो जो लिख रहे हैं वही मिला रहे हैं कि कुछ दूसरा मिला रहे हैं। और बात ये थी कि उससे जो पैसे की उगाही हो रही थी, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, और सरकार ने FIR दर्ज की और उसको बैन किया है उत्तर प्रदेश में। विवेक सिलास? Yes. First of all, Anand, very good evening. Let me clarify it first that whatever is happening, fine. But there are many issues, serious issues, important issues that has to be handled by the state of Uttar Pradesh. There are other important things to handle in the state. It seems that the Bharatiya Janata Party has no other issue except for issues like these to divert and divulge the mind of the people. And we have seen it in the entire country. It's not only in Uttar Pradesh. We have seen it in the entire country in every election. The Bharatiya Janata Party, I think it seems that they try to hide behind the curtain, bringing such issues of religion and caste, etc. And it's nothing new for them. Today, the Honorable CM Yogi Adityanath-ji also says that we have surplus of revenue in Uttar Pradesh. So, why there is no cheap electricity in Uttar Pradesh? That is the question. Why farmers don't get the DAP, the urea? जो विषय है उस पर थोड़ा लेट्स डिबेट. व्हाई डू वी हैव टू शिफ्ट द गोल पोस्ट एंड से अच्छा हाँ ये तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसका क्या, उसका क्या, उसका अगर ये ठीक है तो आप कहिए हम इसका समर्थन करते हैं. अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है तो आप कहिए इट इज रॉन्ग. विवेक सिलास? As a matter of fact, I said whatever the state government is doing, it's okay, fine. But we as Samajwadis, we need to ask question regarding the basic issues of the common man. Correct. तो आप समाजवादी हैं तो बेसिक इशू ऑफ द कॉमन मैन ही तो है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल, अगर आपके लिए हलाल मैंडेटरी है क्या, हलाल मीट, और आपको अगर सारे होटल उत्तर प्रदेश में सिर्फ हलाल मीट सर्व करे तो ये आपके धर्म के खिलाफ है कि नहीं है आपके मान्यताओं के खिलाफ? एक सिख को इन से फॉर सिख और कई सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके लिए हलाल हराम है, पर उनको अगर जबरदस्ती अब हलाल मीट परोसा जा रहा है तो इज दैट फेयर और अनफेयर? ये समाज में कुरीति है, गलत है कि नहीं है? And if there are some of these organizations who in their websites have claimed that they are using the money gained from halal certification to help the terror accused, like in the German bakery blast cases. Look, so then, as far as the Bharatiya Janata Party is concerned, no election or no issue goes except terrorism, except Pakistan, except Shamshan Kabristan, except Eid Diwali. That is what I am trying to explain you, man. I am trying to explain you. So, this is not an issue for the BJP, sir. This is an issue that's been there for decades. मैं तो अब BJP से पूछूंगा, मनीष शुक्ला जी, आप तो दूसरी बार पावर में आ रहे हैं, पहले 5 साल आपको दिखाई नहीं है? ये मुद्दा तो 2017 से पहले से उठाया जा रहा है. आपके खुद की सरकार को अंडर योगी जी इस पे याचिकाएं दी गई हैं और एक याचिकाकर्ता अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ. तो अभी कैसे जाग गया? नहीं, आपका सवाल दुरुस्त है. और देखिए, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश बनने के बाद तमाम हमने ऐसे निर्णय लिए हैं. और देखिए, निर्णय की प्रक्रिया होती है. एक कोई निर्णय 2017-19 मार्च को ही हो सकता है, कोई साल भर बाद. लगातार हम लोग इस तरह के निर्णय ले रहे हैं. एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया कि 85% आबादी को आप बाध्यकारी रूप से हलाल प्रोडक्ट खिलाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है. इनकी बातों से यही लग रहा है. ये जो जमायते उलेमा हिंद है और जमायते उलेमा महाराष्ट्र, मुंबई, तमाम जो संगठन जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उनकी साख भारत में क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है. अभी आज ही पेपर में छपा, लखनऊ के पेपर में छपा है कि जमाते उलेमा हिंद ने कहा है कि वलीउल्लाह जो दोषसिद्ध अपराधी है, आतंकी है, उसका मुकदमा लड़ेंगे जमाते उलेमा हिंद. यानी समाजवादी पार्टी इसका भी समर्थन कर रही है. ये 85% आबादी को जबरदस्ती एक वर्ग के धार्मिक जो प्रैक्टिस है उसको उड़ाना चाहते हैं. देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जैसे जैसे जो विषय सामने आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे और उसी क्रम में इसको एड्रेस किया है. 2 चीजें और मैं कहना चाहता हूं जल्दी. एक तो देखिए, हमको लगता है तमाम मुसलमान भी ऐसे होंगे जो
टूथपेस्ट, इन तमाम चीजों पे हलाला के माध्यम से जो पैसा वसूली हो रहा है उसका हलाला नहीं, हलाल हलाला नहीं सर, हलाल है, लेकिन हलाल है, नहीं वो हलाल स्लिप ऑफ टंग है सर। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, पोटेटो चिप्स, आलू की चिप्स पे हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है? यही जो आप पैकेट्स खरीद रहे हैं, जो आप स्नैक्स खरीद रहे हैं, उस पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है? यह प्रश्न आज तक किसी ने क्यों नहीं पूछा है सरकार में से? अभी क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये तो आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई कर रहा है, सवाल आप उससे पूछ रहे हैं और एक पक्ष बैठ के आज भी उसका समर्थन कर रहा है। दूसरा बात, मैं एक बात कहूंगा, ये बहुत देखिए, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, उन्होंने ये किया आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यही और कोई काम नहीं है, यही एक काम है, यही आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, और अगर ये काम इंपॉर्टेंट था तो 8 साल बाद क्यों किया जा रहा है? 5 सेकंड, 7 साल बाद। 5 सेकंड। अभी मेरे स्लीपिंग ऑफ टंग, मैंने हलाला बोला, इन्होंने मेरे मानसिकता पे सवाल खड़ा किया। मैं कहूंगा न उत्तर प्रदेश में हलाल चलेगा, न हलाला चलेगा, न हवाला चलेगा, और सपा खड़ी होती है तो भी हमारी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ये मेरी मानसिकता पे मत सवाल खड़ा करिए। दूसरी बात, हाँ, आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए, हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम वो कानून बनाए जो देश में नहीं था, और ये एक बड़ा इशू है। तमाम प्रकार की शिकायतें मिलती रही, सरकार ने एग्जामिन किया, हमने FIR सुबह दर्ज किया, रात तक उस पर हमने रोक लगा दी, हमारी सरकार ने रोक लगाई है। जहां तमाम कई अभी 2012 से 17 के बीच इनकी भी सरकार थी, ये तो आज भी बैठ के अगर इनको अवसर मिले तो अगर इनको वोट दिखे तो आज भी ये 85% आबादी को हलाला सर्टिफिकेट चीजें खिलाने के लिए बात। सर, हलाल सर्टिफिकेट है, हलाला अलग मुद्दा है, उसको तो अभी तक आपने बैन नहीं किया, वो अलग बात है, रहने दीजिए। पर मैं बार बार उस पर मैं आपको नहीं टोकना चाहूंगा, पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हरिंदर सिक्का इज विद अस। हैरी सिक्का जी, ना समाजवादी पार्टी, अच्छा एक मिनट रुके, नहीं रुके, विरोधी है। नहीं, आप दोनों के विरोधी हो, लेकिन मुद्दे पे रहिए, और मुद्दे में आपका ये बार बार स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। हलाला अलग विषय, जिस पर आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, सेंटर ने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है। हलाल पर पिछले 8-9 साल से तो मैं जानता हूं एक्टिविस्ट मांग करते जा रहे हैं, हमने बार बार इस विषय को उठाया। हैरी सिक्का, 2017 इफ आई रिमेंबर, नमस्ते सर, जय 2017, if I remember, there was the Hindu Janjagran Samiti, and along with some other petitioners had approached the Uttar Pradesh government and also the centre. You had raised this voice in 2019, 2020. Now they have said that they're going to ban it. What's your first reaction, Mr. Sikka? देखिए, I don't want to get into why it has got delayed, क्यों देर से आया या आया, but आया जोर से, and इसमें जो कनोटेशंस समझाई गई कि नहीं गई, बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देर से ज्वाइन करने के लिए माफी चाहूंगा। मेरा जहाज अभी लैंड किया है दिल्ली में जी, धन्यवाद जी। मुझे डिले हुआ। सो 1,20,000 करोड़ से अधिक रुपया हर साल हलाल टैक्स के रूप में, जो एक जजिया जैसे औरंगजेब लेता था, इस देश में कलेक्ट किया जा रहा है। वो कहाँ खर्च हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। सर, 1,20,000 करोड़ बोल रहे हैं आप? 120,000 करोड़? जी, 1,20,000 करोड़ से अधिक पैसा हर साल ये हलाल टैक्स बोर्ड, जमायत उलेमा, जमायत इस्लामिया, जमायत महाराष्ट्र, ये सब इकट्ठा कर रही हैं। ये कहाँ जा रहा है? क्यों भुजिया जो है वो हलाल सर्टिफाइड है, अमूल घी हलाल सर्टिफाइड है। तो जब हमने गिरिलाल जी से पूछा कि साहब ये, जब तब मिनिस्टर थे तब वो, कि साहब ये मलेशिया को एक्सपोर्ट घी, हलाल घी सर्टिफाइड हो रहा है, क्या चक्कर है? उसके लिए अमूल घी उनको 50 लाख रुपया, 50,000, 1 लाख रुपया हर साल टैक्स भी देती है। हर प्रोडक्ट्स के लिए 1 लाख 20,000 डिपेंडिंग ऑन ये टैक्स भी देते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बोला जी, वो मिस्टर सोडी वहाँ के CEO थे अमूल के, उन्होंने बोला जी नहीं तो मलेशिया हमसे ना वो प्रोडक्ट लेगी नहीं इंपोर्ट बिना सर्टिफिकेट के। तो उनका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, आप उनका पाम ऑयल बंद कर दीजिए इंपोर्ट करना। जैसे ही वो अनाउंस किया कि थ्रेट किया, मलेशिया मान गया कि नहीं जी बिना सर्टिफाइड दे दीजिए। ये एक गेम चल रहा है जिसमें मलेशिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं अंडर चेयरमैनशिप। वर्ल्ड वाइड आप हैरान होंगे, $5 ट्रिलियन से ज्यादा की कलेक्शन है, ये सर्टिफाइड है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और इंडिया में 1,20,000 करोड़ से ज्यादा की ये पैसा हलाल बोर्ड्स को विदेश में भी देना पड़ता है, और कसाब को बिरयानी भी खिलानी पड़ती है,
और इसी पैसे से कपिल सिब्बल के जैसे लॉयर्स भी पेमेंट होती है जिहादियों पर खर्च करने के लिए। और बताते हैं 80% इस देश में हिंदू हैं, ओके, जो कि झटका खाते हैं, जिन्हें 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 अलाउ नहीं है, रहत मर्यादा के खिलाफ अलाउड नहीं, हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। उन्हें आप बिना बताए हलाल खिला रहे हैं, हलाल मांस खिला रहे हैं, हलाल वेजिटेबल, हलाल मिल्क, हलाल सीमेंट है केरला में आज की तारीख जी, हलाल घर भी हैं, शरीयत कंप्लायंट हलाल सर्टिफाइड घर। आप ये बताइए, आप किसी मुसलमान को किसी तरीके से बिना उनके बताए आप झटका मांस खिला सकते हैं? वो आपकी दुकानें जला देंगे। तो वो अपने धर्म के पक्के हैं। हिंदू जाति नपुंसक हो चुकी है, ये मेरा बार बार कहना है। मुंह खोल के बैठ जाते हैं जहां खाने को मिल जाता है नॉन वेज, फिर वो करीम का हो या किसी का हो। आप करीम में जाइए, कितने हिंदू बैठे होते हैं, अपने आप को महापंडित बोलते हैं और वहां बैठ के खाते हैं। तो हमारी जो हड्डियों में ना गुलामी की जंजीर है वो थोड़ी टूटी नहीं है, इसका वो असर नहीं देख रहे। ये जो शादियां हो रही हैं ना, 50,000 रुपया मिल गया दे देते हैं कि हिंदू की लड़की 1 लाख, कोई सिख की लड़की और दिस दैट। ये कौन फंडिंग कर रहा है? मदरसा तो नहीं कर रहे, मुसलमान बिजनेसमैन तो नहीं कर रहे, फिर ये कौन कर रहा है? ये हलाल बोर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो अपने किताबों को आपको दिखाने को तैयार नहीं है। वो मैं और आप जीएसटी भरते हैं, वो जीएसटी भरने को तैयार नहीं है। ये जो कांग्रेस ने ये छेड़ी थी, जिसके मुताबिक अपेडा में हर चीज वो हलाल सर्टिफाइड नहीं होगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। इसका मतलब है 4 से 5 लाख जो हिंदू झटका मीट का काम करते थे वो नौकरी से बाहर कर दिए गए, दुकानें बंद हो गई। 50,000 से ज्यादा ये नाम दिए गए हैं लिस्ट के लोगों को कि ये लोग कन्वर्ट हुए जबरदस्ती, क्योंकि वाल्मीकि समुदाय और दूसरे समुदाय जो ना वो खटीक लोग, वो कहाँ से खाना खाएं, रोजी रोटी चलाएं। एफएसएसएआई के अंदर में एफएसएसएआई इक्वली इसमें अपराधी है। उनके रूल के मुताबिक में, उनके लॉ में स्टनिंग ऑफ एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। कहाँ होती है स्टनिंग? स्टनिंग हो जाए तो हलाल नहीं है। दूसरा, ये और भी लानत वाली बात है, लानत वाली बात है कि बाबा रामदेव स्वामी और बाबा अपने आप को कहने वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, खड़ाऊ पहन के लकड़ी के और हिंदुत्व की बात करने वाले, अभी एक ऑडियो विजुअल उन्होंने विजुअल में जस्टिफाई किया है कि मौलवी उनके उसमें आता है, प्लांट में आता है, छुपा गए कि वो कलमा पढ़ता है, छुपा गए कि वो मौलवी थूक भी फेंकता है, और फिर वो सर्टिफिकेट देता है, पैसे लेता है, चले जाता है। रामदेव जी, आप जानते हैं कि आप ये जो आपके नाम पे वो ये दिखा के 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख और इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ के कि देखो रामदेव भी दे रहा है, कृपा करके ये बंद कर दीजिए। इससे हिंदू जाति, सिख जाति को नष्ट किया जा रहा है और आप उसके रिंग लीडर बने हुए हैं। सर देखिए हरिशिका जी, I'll tell you what. एक मिनट और. Yeah, I'll give you that minute, but I'm just going to qualify, sir. You are making the claims and you're citing numbers and you're taking names. Me as an individual and we as a channel do not endorse these claims till the time you prove them. And if somebody does decide to take you to court, sir, you have to prove those charges that you're making, the numbers that you're taking, and the names that you're taking. I will be responsible. Ji, please complete and then Vivek Sala's final word. Yeah. I will be responsible for my statements. I have requested him repeatedly. I've challenged him. You come to me in a debate or you question me my authorities of what I am saying to you, or let Halal board check me, debate with me, or prove me wrong in the court. Right. That this is the kind of quantum of money they are collecting illegally. Why airlines are allowed to sell non-vegetarian food to Hindus without telling them that it is halal? It is offense. It is against my religion. Correct. It is against my I understand your logic, sir, and Vivek Salas, I hope you appreciate that if you cannot serve jhatka meat to Muslims because it's against their faith, then the vice versa also applies. You can't serve halal meat to non-Muslims because it's not mandated in their faith. 1 minute, 30 seconds, 30 seconds. जो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, ये बहुत ही लंबा जाएगा, इसका बहुत गहरा असर होगा। ये पहले होना चाहिए था या बाद में होना चाहिए था, अभी भूल जाइए। हुआ
तो आप ये कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए सर. Sir, I am running out of time. Yes, Vivek Silas. Now, is it as small an issue as you were initially making out to be, Vivek Silas? The dimensions. No, it was never. I never mentioned that it was a small issue, but as you said that the writ was and the application was given in 2017, and fortunately it was, or unfortunately it was the BJP government that was running in 2017. So why they took 8 years? It's the 8th year now, and as far as Mr. Sikka has told, it's ridiculous. It's something very shocking that 1,20,000 crores is involved in this. So where that money is going? It is going to the Bharatiya Janata Party or where? Are they funding the Bharatiya Janata Party? That has to be, that is a, something that has to be... Who they are funding as a political entity, we do not have the answers for that. But I can tell you, but I can tell you one thing, Vivek ji. I can tell you one thing. I can tell you one thing, Vivek ji. Political, you know what? No, one way. What I can tell you, Vivek ji, is that about a year and a half ago, when we did the story on this halal certification, at that time on the website of one of those entities which has now been pulled up, and which is saying it will go to court, they had put it as a declaration there, the number of cases they were fighting for terror accused. They were arguing for the terror accused using halal certified money. They had put it all out on display. The day CNN News 18 did that story, the next day they took it off their website. They also took out the disclaimer where they said that they use this money for such cases. So the reality is there, and we have the evidence with us in our archives, and when required, we'll furbish that too. For the moment, I have to move on. Thank you very, very much for joining us in this debate. Hari Sikkaji, Vivek Silas and Manish Shukla. Thank you very much.